Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine by the grace of God and enjoying a quality time with your family. Today is your lesson number 7 and it is about the reading and translation and the summary of the unit 5 daffodil. So let's start the lesson. First, have a look on the words, difficult words, their synonyms and their meanings. The first word is fluttering, and fluttering's synonym is flapping, dancing, and its meaning is झूमते हुए. The second word is glee, delight, खुशी. Host, abundance, जमघटा यानी बहुत सारे चीज़ों का इकट्ठा होना. Jocund, happy, खुशकुन. Twinkle, sparkle, टिमटिमाना. Pensive, thoughtful, सोच में डूबा हुआ. Solitude, loneliness, तन्हाई. Now we will do the translation of the stanza number 1. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. I wandered lonely as a cloud. मैं ऐसे बादल की तरह तन्हा घूम रहा हूँ या घूम फिर रहा था. That floats high over vales and hills, जो पहाड़ों और वादियों के ऊपर तैरता फिर रहा हो. When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने देखा एक हजूम. A host of golden daffodils, आबी नरगिस के फूलों का जमघटा. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Beside the lake, beneath the trees, झील के पास दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze, हवा में झूमते हुए, रक्स करते हुए. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in the never-ending line along the margin of the bay. Continuous as the stars that shine, लातादाद सितारे जैसे चमकते हों, and twinkle on the Milky Way, और टिमटिमा रहे हों कहकशां में. They stretch in the never-ending line, कभी ना ख़त्म होने वाली कितार में फैले हुए, along the margin of the bay, झील के किनारे के साथ. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 एक ही नज़र में देखे मैंने, अपने सर हिलाते हुए खुशी से झूम रहे थे. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in the glee. A poet could not be gay in such a jocund company. The waves beside them dance, but they, लहरें उनके साथ रक्स कर रही थी लेकिन वो. Outdid the sparkling waves in glee, खुशी में चमकती लहरों से बाजी ले गए. A poet could not but be gay, एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता. In such a jocund company, ऐसे खुशकुन सोहबत में. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मैंने देखता ही रहा मगर मुझे अंदाज़ा न था कि ये मंज़र मेरे लिए आइंदा ज़िंदगी में कितना बड़ा ख़जाना साबित होगा. For oft when on my couch I lie, in vacant or pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. For oft when on my couch I lie, अक्सर जब कभी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ. In vacant और in pensive mood, खाली जहन या गहरी सोच में डूबा हुआ. They flash upon that inward eye, तो वो मेरे तसव्वुर में उमड़ आते हैं. Which is the bliss of solitude, मेरी तन्हाई में खुशी का बाइस बनते हैं. And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और नरगिस के फूलों के साथ रक्स करता है. Now let's read the summary.
विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द पोएट ऑफ नेचर पार एक्सीलेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के बेहतरीन पोइट हैं या फितरत के बेहतरीन पोइट हैं। द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर हिम। फितरत के खूबसूरत मनाजिर उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस थे, या वो उनकी तरफ बहुत खिंचते थे, या उनकी दिलचस्पी का बाइस थे। इन दिस पोएम, इस नज़म में या इस पोएम में, ही डिस्क्राइब अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। अपनी इस पोएम में वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खुशगवार तजर्बा बयान करते हैं। वंस ही वॉज वॉकिंग बाय अ लेक, एक दफ़ा एक झील के किनारे चल रहे थे। ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लूमिंग डेफोडिल्स, उन्होंने बहुत सारे खिलते हुए आबी नरगिसी फूल देखे। दैट वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो हवा में परिंदों की तरह पर फड़फड़ा रहे थे या डांस कर रहे थे। दे वर शाइनिंग एज अ स्टार इन द मिल्की स्काई, वो आसमान में कहकशां में सितारों की तरह चमक रहे थे। दे वर डांसिंग इवन मोर जॉयसली देन द वेव्स ऑफ द लेक, वो पानी पे नाचती लहरों से भी ज़्यादा खुशकुन तरीके से डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। द पोइट गेज्ड एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, शायर ने उनकी तरफ बहुत देर तक देखा। एंड फेल्ट ओवरजॉयड, और उसका दिल खुशी से भर गया। एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो, उस वक्त वो नहीं जानता था, वट वेल्थ ऑफ जॉय एंड पीस, कि किस किस्म की खुशी और अमन, जो सुकून है, दैट सीन, ये जो सीन है, माइट ब्रिंग टू हिम, वो उसकी तरफ लेके आएगा, या वो ये नहीं जानता था कि ये नज़ारा उसके लिए कितनी खुशी का बाइस बनेगा। इन हिज लेटर लाइफ, आने वाली ज़िंदगी में, वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड फॉरलॉर्न, जब भी परेशान या अफसरदा हो जाता है या गमगीन हो जाता है, द सेम सीन अपीयर्ड बिफोर हिज इनवर्ड आई, तो यही नज़ारा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। एंड मेड हिम फॉरगेट ऑल द फीवर एंड फ्रेट ऑफ लाइफ, और उसे ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ भुला देता है। एट दैट मोमेंट, इस लम्हे, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द जॉली एंड लाइफ गिविंग कंपनी ऑफ दोज डैफोडिल्स, और इसी लम्हे वो अपने आप को इन आबी नरगिसों के फूलों की खुशगवार और ज़िंदगी देने वाली सोहबत में महसूस करता है। एंड ही सेज, और वो कहता है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और नरगिस के फूलों के साथ रक्स करता है। Students, this is your today's task. Read the translation carefully. Learn and write the summary of the poem Daffodil. May Allah bless you and protect you till the next lesson. Allah Hafiz.